اسلام ہر ایک مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، مہینے کا کوئی بھی دن ہو، آدمی اپنے دین اور اپنے مسلمان ہونے کو نہ بھولے۔ سردی کے دنوں میں ٹھنڈ بھی ہم کو عبادتوں سے دور نہ رکھے، گرمی کے دنوں میں گرمی بھی ہمیں نمازوں سے دور نہ رکھے۔ رزلٹس آنے کے بعد بچوں کے اوپر ہرگز زبردستی کسی بھی معاملے میں نہ کریں، پابندی کے ساتھ صبح شام اگر 1 گھنٹہ بھی دیا جائے گا تو انشاءاللہ بچے جن کو الف با بھی نہیں آتا ہے اگر 1 مہینہ پابندی کے ساتھ وقت دیں گے اور پورا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اس وقت موسم گرما اور گرما کی چھٹیوں سے اکثر کا واسطہ ہے۔ موسم گرما کے تعلق سے اور خاص کر کے ابھی اس وقت اسکولوں اور کالجوں میں بچوں کی جو چھٹیاں چل رہی ہیں، اس حوالے سے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ سال میں 4 الگ موسم آیا جایا کرتے ہیں۔ موسم گرما، سردی کا موسم، بارش کا موسم، پتجھڑ موسم، ایسے کئی موسم، اور موسموں کی یہ تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر رکھی ہے۔ دن رات کا یہ آنا جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے، وہیں یہ موسم
اور یہ موسموں کی تبدیلی اور لگاتار ایک کے بعد دیگرے موسموں کا تبدیل ہونا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کا ذکر خصوصاً اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے 30 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس وقت موسم گرما، گرمی کے دنوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ موسم جیسا ہو، جو کچھ بھی ہو، دین اور ایمان ہمیں اس بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم گرما کے تعلق سے بعض تعلیمات خصوصاً بتائی ہیں۔ اسلام ہر ایک مسلمان سے یہ چاہتا ہے کہ سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، مہینے کا کوئی بھی دن ہو، آدمی اپنے دین اور اپنے مسلمان ہونے کو نہ بھولے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا جو بڑا مقصد ہے، وہ مقصد ہمارے سامنے ہر دن ہو اور اس سے کبھی ہم غافل نہ ہوں۔ ہماری عبادتیں فرض عبادتیں ہوں یا وہ عبادتیں جن کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، ویسی عبادتوں کا اہتمام ہر ایک موسم میں ہونا چاہیے۔ موسموں کی یہ تبدیلی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تکلیف میں رکھے، مصیبت میں رکھے، یہ بات پسند نہیں کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی دوران خطبہ پوچھتے ہیں کہ یہ بھائی کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، اس آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے نظر مانی ہے، منت یہ مانگی ہے کہ یہ روزہ رکھے گا، دھوپ میں کھڑا ہوگا، سایہ یعنی کسی بھی چھاؤں سائے کے نیچے نہیں آئے گا، کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، ایسی نظر اس نے مانی ہے، تو اسی وجہ سے یہ کھڑا ہوا ہے دھوپ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جاؤ، جا کے اس سے کہو کہ وہ بیٹھ جائے اور دھوپ میں نہ کھڑا ہو بلکہ سائے میں آ کر بیٹھے، باقی رہا روزہ تو وہ روزے کو مکمل کر لے۔ یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے ذریعے سے اس آدمی کو نصیحت کی۔ یہ نصیحت بتاتی ہے کہ اسلام کبھی بھی ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو تکلیف میں، مشقت میں ڈال کر عبادتوں کی پابندی کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر اپنے اوپر ایسی عبادتیں فرض کر لیتا ہے نظر یا منت کے طور پر بھی، تو اس سے منع کیا گیا۔ جہاں تک اسلام کے اندر سچائی ہے، جو بات ثابت ہے، اس کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے اس حدیث میں آپ نے دیکھ لیں، وہ بندے نے ایک اچھا کام کیا کیا، روزہ رکھا۔ یہ روزہ دین کے اندر ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ روزے کو باقی رکھو، باقی رہا دھوپ میں کھڑا ہونا، دھوپ میں کھڑ کر کے اللہ کو راضی کرنا، اور دھوپ میں کھڑ کے جو بدن کو جو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف دے کے یہ سمجھنا کہ میں ایسا اگر دھوپ میں کھڑا رہوں گا یا میں سایہ نہیں لوں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، یہ غلط بات ہے۔ آدمی موسموں کی وجہ سے اپنے آپ کو تکلیف میں، مشقت میں ڈال کر کے ایسی پابندی جو اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ پابندی اگر آدمی اپنے اوپر لا لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بات سے منع کیا۔ معلوم ہوا کہ جو اچھائی ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ روزہ اچھا تھا، اللہ کے نبی نے باقی رکھا۔ باقی جو چیزیں، گرمی میں رہنا، دھوپ میں کھڑا ہونا، کسی سے بات چیت نہیں کرنا اور اسی بنیاد پہ عبادت سمجھنا، اللہ کے نبی نے ان باتوں سے منع کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو نمازیں ہیں، ہماری نمازیں اول وقت میں ہوا کرتی تھیں، لیکن گرمی کے دنوں میں بعض نمازوں کو اللہ کے نبی لوگوں کی سہولت کا مطلب ہے، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ظہر کا وقت ہوا، ایک آدمی صحابہ میں سے ایک نے اذان دینا چاہا،
तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बाद अजान दो। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है और पूछता है कि अल्लाह के नबी क्या अब अजान दूं? अल्लाह के नबी ने थोड़े वक्त के बाद उससे बात कही कि अब तुम अजान दे सकते हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस सुनाई, इन्न शिद्दतल हर्रि मिन फैहि जहन्नम फइज़ा इश्तद्दल हर्र फअब्रिदू बिस्सलाह। माना यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर ये धूप, सख्ती, ये गर्मी जहन्नम के सांस छोड़ने की वजह से है। अल्लाह ताला ने जहन्नम को ये जो मौका दिया है कि वो एक मर्तबा सांस अंदर लेगी और एक मर्तबा सांस बाहर छोड़ेगी। जैसे इंसान सांस लेता है, सांस छोड़ता है, वैसा ही निज़ाम अल्लाह ने जहन्नम का बनाया। और जब जहन्नम सांस बाहर छोड़ती है, उसकी गर्मी, उसकी आग की सख्ती की वजह से दुनिया में गर्मी और सख्ती नजर आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यकीनन दुनिया की ये गर्मी जहन्नम की सांस की वजह से है। जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज को थोड़ा ठंडे वक्त में पढ़ा करो। और यही वजह है गर्मी के दिनों में अल्लाह के नबी जोहर पहले यानी कि शुरू के वक्त के बजाय थोड़ा वक्त छोड़ करके, जब वक्त में धूप में थोड़ी सी नरमी आए, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े ताखीर से अदा करते थे। ये गर्मी के दिनों के लिए ख़ास है। मतलब ये कि रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को दीन के नाम पर कभी तकलीफ़ में, सख्ती में डालना पसंद नहीं किया है। बाकी रहा कि हमारी इबादतें चाहे गर्मी में हो, सर्दी में हो, हमारी इबादतें, हमारी नमाजों की पाबंदी हर हालत में होना चाहिए। सर्दी के दिनों में ठंड भी हमको इबादतों से दूर न रखे, गर्मी के दिनों में गर्मी भी हमें नमाजों से दूर न रखे। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आप देखेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादतों की जहाँ पाबंदी करते थे, वहीं पर ख़ास करके रोज़ों की जब बात आती है, अक्सर हदीसों के अंदर ये बात पढ़ने में आई कि सर्दी के दिनों में सहाबा कराम कसरत से रोज़ा रखते थे। सर्दी की वजह से ये मौसम सरमा, मोमिनों का महीना कहा गया। क्यों? सर्दी के दिनों में उतनी तकलीफ़ नहीं होती है, रोज़े की वजह से, भूख प्यास छोड़ने की वजह से। लेकिन ये सिर्फ सर्दी के दिनों में नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नफिल रोज़ों की ये आदत गर्मी के दिनों में भी होती। एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम सफ़र में थे। गर्मी इस हद तक ज़्यादा थी कि लोग साया नहीं होने की वजह से अपने हाथों को सरों पर रखते थे, वही धूप नहीं मारना बोल के हाथ आड़ा करते थे। ऐसी धूप होती थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी ख़ास करके अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये दोनों के बारे में अल्लाह के नबी और अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में सहाबा कराम को मालूम हुआ कि ये दोनों भी रोज़े से हैं। अल्लाहु अकबर। यानी मौसमों की ये गर्मी इंसानों को इबादतों से दूर न रखे। ख़ास करके इस वक्त हम शव्वाल के महीने से गुज़र रहे हैं। शव्वाल के 6 रोज़े अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और चूँकि रमज़ान के बाद ये 6 रोज़े पूरे साल भर के रोज़ों का सवाब देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं गर्मी की वजह से, धूप की वजह से ये रोज़ों से या तो महरूम होते हैं या रोज़े नहीं रखते हैं। हमें चाहिए, अल्लाह के नबी की एक सुन्नत ऐसे भी है कि आप जहाँ मौसम ठंडा हो रोज़ा रख के सवाब कमाते हैं, वहीं अगर मौसम गर्म हो, सर्दी धूप हो और आदमी उसके बावजूद भी नफिल रोज़े या वो रोज़े जिनको रखने से अल्लाह से क़रीब होते हैं, ऐसे रोज़े भी रखना चाहिए, खुसूसन इन दिनों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ यानी दुनियावी नाहिए से हम देखते हैं, दीन के अलावा अल्लाह के नबी जहाँ दीन के एतबार से पाबंदी करते थे, दुनिया के एतबार से मौसमों की वजह से तबीयत और सेहत का ख्याल रखना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। चुनांचे
अल्लाह के नबी को सहाबा कराम ने देखा आप खजूर के साथ तरबूज इस्तेमाल कर रहे हैं। सहाबा कराम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी, खजूर के साथ ये तरबूज इस्तेमाल करने की कोई ख़ास वजह है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ, ये जो खजूर है, खजूर एक गर्म चीज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं खजूरों की गर्मी को तरबूज की ठंडक से तोड़ना चाहता हूँ। यानी दोनों में एक मुतवाजिन एक लेवल बाकी रहता है। आदमी अगर गर्मा के दिनों में सिर्फ गर्म चीज़ें इस्तेमाल करे, उसकी तबीयत में और गर्मी आती है। उसके बजाय इसके साथ अगर आदमी तर चीज़ें यानी तरबूज या इस जैसी दूसरी चीज़ें आदमी इस्तेमाल करता है, बल्कि करना चाहिए। रसूलुल्लाह का ये अमल बताता है कि एक मुसलमान अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ये सुन्नत में से है। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ख्याल रखा है। तो चाहिए कि गर्मा के दिनों में हमारी सेहत के लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, मुफीद हैं, वो चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो चीज़ें नुकसानदेह हैं, चाहे आप नौजवान भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी सेहत तबीयत को बिगाड़ने वाली चीज़ों से बचना भी ये सुन्नत में शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात तालीमात रही जो गर्मी के दिनों में, गर्मी के अय्याम में अल्लाह के नबी किया करते थे। मोहतरम हजरात, इस वक्त हम गर्मी के छुट्टियों से गुजर रहे हैं। अक्सर समर हॉलीडेज से इस वक्त हमारा वास्ता है और स्कूलों कॉलेजों के बच्चे छुट्टियों की ज़िंदगियां अभी गुजार रहे हैं। इस वक्त छुट्टियों के हवाले से एक दो तीन नसीहतें आपके सामने रखना है। पहली नसीहत, सबसे पहली नसीहत ये है, ये वो दिन है जब बच्चे घरों पर होते हैं। तो माँ बाप को पहली नसीहत ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को वक्त दें। माँ बाप बच्चों के लिए वक्त निकालें। वक्त निकालने का मतलब है माँ बाप को चाहिए, खुसूसन बाप को चाहिए या घर के जो जिम्मेदार हैं मर्दों में से, उनको चाहिए कि वो अपने बेटों के साथ, अपनी औलाद के साथ वक्त बिताएं, थोड़ा वक्त निकालें उनके लिए। वक्त निकालने का मतलब ये है कि उनके बारे में मालूमात करें, वो क्या पढ़ रहे हैं, उनकी दुनियावी पढ़ाई किस हद तक चल रही है, वो दीन के मामले में कहाँ सुस्त और गफलत में वाक़े हुए हैं, इसका जायज़ा लें। उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई का जो शेड्यूल चल रहा है, स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं, उनके प्रिंसिपल से, उनके टीचर से उनकी तालीम के बारे में मालूमात कराएं। और ख़ुसूसन जिनके रिज़ल्ट्स आए हैं, रिज़ल्ट्स आने के बाद बच्चों के ऊपर हरगिज़ ज़बरदस्ती किसी भी मामले में ना करें, ख़ास करके एजुकेशन को लेकर, तालीम को लेकर। देखिए मेरे भाइयों, ये एक है हमारी ख्वाहिश। हमारी ख्वाहिश का मतलब यह है बाप की ख्वाहिश। बाप की ख्वाहिश होती है बच्चे को पढ़ाए, बच्चा टॉपर बने, बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, हर बच्चे की जहनी सलाहियत एक जैसी नहीं होती है। कोई एक सब्जेक्ट में होशियार होता है तो दूसरे सब्जेक्ट में कुन जहन होता है। कोई ऊंचे नंबरात से कामयाब होता है, कोई मीडियम लेवल का होता है, या कोई फेल भी हो जाता है। बच्चों को अपनी ख्वाहिश की बुनियाद पर प्रेशर में ना डालें। ये आज के माँ बाप को बड़ी नसीहत है। आज माँ बाप क्या चाहते हैं, यानी मैं तो नहीं पढ़ा, मेरे बच्चे को पढ़ाना। अब इस वास्ते बच्चे पर प्रेशर दिन रात पढ़ाना है। एक तो स्कूलों का माहौल खुद ऐसा गर्म है कि बच्चे को स्कूलों के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर, ख़ास करके जो 10th में होते हैं, इंटर में होते हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो एक आज की दुनिया की एक अनहोनी चीज़ है। इससे पहले भी तालीम होती थी, एजुकेशन होती थी, लेकिन ऐसी सख्ती और इतनी ज़्यादा पाबंदी, ऐसा प्रेशर नहीं होता था। लेकिन पिछले चंद सालों से ये प्राइवेट स्कूलों ने 10th के नाम पर बच्चों की नाक में दम कर दिया है। और ये स्कूलों की ये हालत होती है तो माँ बाप का उल्टा प्रेशर। बच्चा सुबह से लेकर शाम तक स्कूल जाके आता है, शाम में आने के बाद फिर वही सवालात, वही बातचीत, वही क्या पढ़ रहा है, तू अच्छा होना, अच्छे नंबरात से आना। प्रेशर ना डालें। देखिए, अल्लाह ताला आपको औलाद की जिम्मेदारी दिया है। जिम्मेदारी का ये मतलब नहीं कि आप अपनी पसंद के लिए बच्चों को मजबूर करें, समझ रहे हैं?
अपनी पसंद के लिए बच्चों को मजबूर ना करें। आपकी पसंद हो सकती है, आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें अरमान हो सकती हैं। भाई कभी अपने बच्चे से पूछें, बेटा क्या पढ़ना चाह रहा है, आगे क्या बनना चाह रहा है, तुझे किस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, तेरी सलाहियत किस में है, तू क्या बनना चाहता है। कभी तो बच्चों के साथ बैठकर ऐसी बातचीत हुई है? तो गुजारिश ये है कि ये दिनों में माँ बाप के साथ बच्चे होते हैं, अक्सर बाप जो है बाहर होते हैं काम की वजह से, उनकी तिजारत बिजनेस की वजह से। अभी छुट्टियां चल रही हैं, आप अपने काम को थोड़ा आगे पीछे कर लें। आज के ज़माने की एक अजीब बात यह है कि माँ बाप, खुसूसन बाप जो है, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को वक्त नहीं दे रहा है। उनके साथ बैठना, कुछ बातचीत करना, उनके साथ खाना पीना नहीं। लोग क्या समझते हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर बुला लेके गए, बाप होने का हक अदा कर दिए, कुछ शॉपिंग करा दिए, समझते हैं कि बाप होने का हक अदा करे। नहीं है। बच्चों से इस तरीके से मिलजुल कर बातचीत करना कि बच्चों की जो दिल की बातें हैं, वो जो बनना चाहते हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं, वो आगे एक हुनर वाले बनना चाहते हैं। हर बाप ये कोशिश करे, हर माँ, कि आपके बच्चे की, उसकी खुद की ख्वाहिश क्या है, वो अपनी खुद से, उसकी अरमानों से क्या बनना चाहता है, एक मर्तबा राय मशवरा उससे भी ले। अरे आप अपनी जगह वक्त के बड़े पैगंबर भी क्यों ना हो, वक्त के बड़े पैगंबर हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ख्वाब देखते हैं बेटे को ज़बा कर रहे हैं, जाके सीधा उठा के ले जाके डाल के ज़बा नहीं करे, बल्कि पूछते हैं या बुनैया इन्नी अज़बहुका फंजुर, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि तू ज़बा कर, तुझे ज़बा कर रहा हूँ, फंजुर, तू बता, मादा तरा, तेरी क्या राय है, तेरी क्या सोच है। अल्लाह अकबर। कौन है? जलीलुल क़द्र पैगंबर है। और हुक्म किसका है? अल्लाह का है। किस बात का हुक्म है? ज़बा कुर्बानी का। कहीं पर भी गुनाह मासियत नहीं है। इसके बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे, नन्हे से बच्चे इस्माइल से पूछ रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि बेटा तेरी क्या राय है, तेरा क्या मशवरा है। आज के कोई बाप अपने बच्चों से ऐसा मशवरा करे हैं? बच्चों के फ्यूचर को लेकर सब दम, बच्चे वो बनाना है, ये बनाना है, प्रेशर नहीं। भाई आपके बच्चे के अंदर क्या सलाहियत है वो बच्चा जानता है, उसका शौक किसमें है वो उसे मालूम है। एक मर्तबा उससे राय लें, और आपके घर के या उस बच्चे के जो टीचर्स हैं या उसके लिए जो खैर खा हैं उनसे मशवरे लें। लेकिन ये करना कि बाप की, माँ की जो ख्वाहिश होती है वो ख्वाहिश को सामने रख के बच्चों पे दबाव डालना, वही बनाने के लिए कोशिश करना, उसी का प्रेशर डालना, और ये इम्तिहान, ये रिजल्ट्स की वजह से बच्चों को खुदा के वास्ते कभी हकीर ना समझें, निकम्मा ना दिखाएं, दूसरे बच्चों से मुकाबला ना करें। वो इतना बड़ा टॉपर है, तू क्या करा, तू, तेरे से ये काम भी हाथ से, ऐसी बातें खुदारा अपने बच्चों से ना करें। भाई अगर आपके बच्चे को पढ़ाई नहीं आती है तब भी कोई बात नहीं, दुनिया के अंदर और बहुत सारे हुनर हैं, और बहुत सारे काम हैं, और बहुत सारी तिजारतें हैं, और बहुत सारे मैदान हैं जिन मैदानों में आप अपने बच्चों को आगे कर सकते हैं। एक तालीम का मैदान ही नहीं है। तालीम के मैदान में अगर आपका बच्चा फेल है तो ये मतलब नहीं है कि आपका बच्चा टोटल लाइफ में फेल है, नहीं है। दुनिया के और दूसरे मैदान हैं, और दूसरे सारे सब्जेक्ट्स हैं, और हुनर हैं, उनमें पढ़ाएं, उनमें आगे करें, उनका भी शौक दिलाएं। पढ़ाई नहीं है तो आज देखते हैं माँ बाप को कैसी गालियां देते हैं बच्चों को। आपकी गली का, महल्ले का, खानदान का कोई बच्चा टॉप रैंक से पास हुआ तो बस उसी का नाम और निशान, उसको आइडियल बना लेते हैं, और फिर दिन रात उठे बैठे गालियां, उन कैसा है, तू कैसा है, क्या है। भाई ये सबकी सलाहियतें, सबका जहन, दिमाग एक जैसा नहीं होता है। आप बाहर का छोड़ें, खुद के घर में देखें, 3-4 भाई होते हैं, आपके 4 बेटे एक जैसे होते हैं? इताअत में, फर्मा बरदारी में नहीं होते। अल्लाह ताला ने हमारी जो 5 उंगलियां रखी ये खुद बराबर नहीं है, तो 5 औलाद कैसे बराबर हो सकती है। तो बच्चों की सलाहियतें, बच्चों के जहन अलग अलग होते हैं, उनके एतबार से आप उनको मैदान में आगे बढ़े, अपने एतबार से हरगिज नहीं। ये बात दिमाग में रख ले, अपने एतबार से हरगिज बच्चों पे प्रेशर ना डाले। यही वजह से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चे जब एग्जामों में फेल हो जाते हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई घर छोड़ के भाग रहा है। क्या वजह क्या है? वजह यह है कि माँ बाप ने घर के अंदर बच्चे पे प्रेशर रखा है। भाई आपके बच्चे का दिमाग एक इंसानी दिमाग है,
اور رائس कुकर नहीं है सीटी बजने के लिए प्रेशर से, नहीं है, वो इंसानी दिमाग है। आप अपनी जगह सोचिए, जो काम आप नहीं कर सके वो काम के लिए आपके बच्चे को फोर्स करना क्या सही है? अरे भाई, खुद तो कभी इंग्लिश पढ़े नहीं है, खुद को तो एक दो लाइन बोलने नहीं आते, और बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना, पढ़ के छोड़ना, नहीं पढ़ा तो जाके मर रहा है। ऐसी बात आपके बच्चों को नहीं भाई। बच्चों के दिमागों में, जहनों में जो सलाहियत होती है, हर एतबार से आप करीब रहकर कोशिश करें, करीब रहें बच्चों से। मेरे भाइयों, माँ बाप बच्चों से ऐसे करीब हों कि बच्चे अपने दिल की बात माँ बाप के सामने खुशी से सुना सकते हो। ऐसी खुरबत, ऐसी दोस्ती होने की जरूरत है। आज माँ बाप ये काम नहीं करने की वजह से नुकसान क्या हो रहा है मालूम? बच्चे के बारे में माँ बाप को नहीं पता, उसके दोस्तों को मालूम है, उसके दोस्त सब जानते हैं बच्चे के बारे में। माँ बाप के सामने बच्चा कभी मुंह खोला नहीं। क्यों नहीं खोला है? माँ बाप उठे बैठे दिन रात गुस्सा, प्रेशर में, या फिर उसको फोर्स करने पर पड़े हैं, तो बच्चा कब जबान खोलेगा? नहीं भाई, ये इंसान है, कोई मशीन नहीं है। आप ऑन करें, ऑफ करें, फिर आए मिक्सी के जैसा कि कभी इधर फिरा कभी उधर फिरा, नहीं है। वो बंदा है, वो एक मामूली सा इंसान है। जो काम अपनी जिंदगी में आप नहीं कर सके, वो काम भाई, आपकी ख्वाहिशें, आपकी अरमान अपनी जगह, लेकिन आपकी ख्वाहिशों के लिए बच्चों पे इस तरीके से फोर्स करना हरगिज भी अच्छी बात नहीं है। समर की ये छुट्टियों में आप कोशिश करें अपने बच्चों से करीब हो, उनके साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें, उनकी पढ़ाई, ख़ास करके उनकी दुनिया की पढ़ाई के साथ दीन की पढ़ाई के बारे में भी कुछ वक्त निकालें। एक दूसरी नसीहत ये है, समर के दिनों में छुट्टियां होती हैं, आप कोशिश ये करें अपने ख़ानदान के, बाप के, माँ के घरानों की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मुलाकात कराएं, उनके लिए वक्त निकालें, उनके घरों को जाएं, उनकी बस्तियों को जाएं। ख़ास करके आपके वो रिश्तेदार जो गरीब हैं, नादार हैं, जिनके घरों में इंतज़ार होता है आपके आने का, आप वैसे घरों को जाएं, अपने बच्चों से मुलाकात कराएं, अपने बड़ों से मुलाकात कराएं। आज बच्चे स्कूलों कॉलेजों के नाम पर इतना बिजी हो गए हैं कि वो अपने ही ख़ानदान के बड़े लोगों को नहीं जानते, किन से क्या रिश्ता है उनको नहीं मालूम होता है। माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसमें एक तरफ का नहीं है, दो तरफ के आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनके घरों को मिलाएं, और ये बात बच्चे के दिल में बिठाएं कि सिला रहमी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, रिश्तेदारों की खुशी में भी साथ देना और उनके गम में भी साथ देना, ये दीन का एक हिस्सा है। ये समझ करके अपने बच्चों को ऐसे वक्त में ज़रूर शामिल करें। फंक्शनों में हर कोई शरीक होता है, लेकिन फंक्शनों में बातचीत का मौका नहीं मिलता, जाते हैं, खाते हैं, आ जाते हैं। नहीं, आप बच्चों के लिए अलग से ऐसा वक्त निकालें। ये दूसरी नसीहत है। तीसरी और ज़रूरी नसीहत, अपने बच्चों को अपने साथ दीन के मुआमलों में शरीक करें, दीन के कामों में शरीक करें। आप नमाजों के लिए जा रहे हैं, नॉर्मल दिनों में बच्चे स्कूलों कॉलेजों को जाते हैं, अभी बच्चे आपके साथ घर पे हैं, तो आप कोशिश करें, माँ बाप कोशिश करें, मर्द कोशिश करे कि अपने साथ बच्चों को मस्जिद में लाए, औरतें ये कोशिश करें कि उन घर में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको अपने साथ मुसल्ले पे लाएं, नमाज के लिए खड़ा करें। दीन का एक शौक़ अपने साथ रखने की कोशिश करें। ख़ास करके ये दिनों में समर कोर्स के नाम पे बहुत सारी कोर्स लगते हैं। अगर आपके करीब ऐसे कोई कोर्स हैं तो उन कोर्सों में भी शामिल करें, दीन के बारे में नॉलेज, मालूमात अपने बच्चों को दिलाएं। लेकिन ये बात याद रखें कि अपने बच्चों की सही तरबियत करना ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, माओं और बहनों, बच्चों की जब तरबियत की बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप समझिए, इस मौके पर, इस ज़माने में मुसलमानों के लिए अपने घरों के अंदर पलने वाले नौजवान लड़के और लड़कियों की तरबियत करना ये सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा काम है ये काम आज के हर माँ बाप को अपने घर के अंदर करना है। अभी ये छुट्टियों में आपके पास वक्त रहता है, मौका रहता है, बच्चे घरों में रहते हैं, उनकी तरबियत के लिए वक्त निकालें। ख़ास करके मेरी एक नसीहत है कि आपके घरों में अगर बच्चे हैं तो आपके करीब मस्जिद में या आपकी मालूमात में कोई इमाम हो, कोई हाफिज़ हो, कोई हज़रत हो, तो उनको अपने घर लाएं बच्चों को अरबी पढ़ाने के लिए। 1-2 महीना भी अगर पाबंदी के साथ सुबह शाम अगर 1 घंटा भी दिया जाएगा
تو انشاءاللہ بچے جن کو الف با بھی نہیں آتا ہے، اگر 1 مہینہ پابندی کے ساتھ وقت دیں گے اور پورا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اپنے گھر سے یا آپ کی معلومات میں جو بھی ہیں، ایک عالم دین کو اپنے گھر سے جوڑنے کی کوشش کریں، ان کی جیسی بھی فرصت ہو اس اعتبار سے۔ لیکن ہم لوگ سال کے پورے مہینوں میں اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ کوشش کم سے کم یہ کریں سمر کے ایسے ہالیڈیز میں ہمارے گھر کو یا ہم خود عالم یا مسجد کے گھر کو جا کر کے جو ہے ان تک دین پہنچانے اور دین سیکھنے سکھانے کا یہ کام کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اور اپنے اعتبار سے ہماری عبادتیں، ہماری ہر نیکیوں میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی جو عبادتیں ہوتی ہیں وہ عبادتیں اس فکر سے بھی ہونا چاہیے کہ یہ عبادتیں میری اولاد کے لیے کام آئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھا کرتے تھے، تو کبھی ان کا بچہ بازو میں سو کر ادھر ادھر پلٹتا اور ان کی نظر بیٹے پر پڑتی تو بیٹے کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ بولتے تھے، کہتے تھے من اجلک یا بنی ھذا، بولتے تھے کہ بیٹے میری یہ عبادتیں، میرا راتوں میں جاگنا، میری یہ تہجد تیری صلاح کی خاطر ہے، تیری تربیت کی خاطر ہے، تیری سدھار کے لیے ہے کہ میری یہ عبادتوں کا اثر اللہ تجھ پہ بھی رکھے۔ اللہ میری یہ عبادتوں، میری یہ نیکیوں کی وجہ سے تجھے دین پر باقی رکھے، اس وجہ سے میری یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، میرا یہ جاگنا ہو رہا ہے۔ آج کے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عبادتوں کے یہ اثرات اپنے بچوں پہ لائیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ مسجدوں کو لے جائیں۔ چھٹی کے دن ہے، خصوصاً عشاء میں، فجر میں ماں باپ گھر پہ ہوتا ہے تو اپنے ساتھ مسجدوں کو اپنے بچوں کو لائیں۔ یہ ایک موقع ہے اپنے ساتھ دین پر باقی رکھانے کے لیے، ایک تربیت آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اولاد کی تربیت آج کے زمانے کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے، خاص کر کے جن گھروں میں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ یہ چھٹیوں میں اپنے بچوں کو الیکٹرانک چیزیں دے کر کے خراب نہ کریں، برباد نہ کریں۔ ٹی ویوں کے پیچھے، موبائلوں کے پیچھے یہ چیزیں ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ چھٹیاں پوری کی پوری ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ چھٹیوں میں کیا بلکہ آپ اپنے بچوں کو دنیا اور دین کے اعتبار سے ہونہار دیکھنا چاہتے ہیں، موبائل سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں اتنے بچے باصلاحیت اور ہنر والے بن سکتے ہیں۔ موسم گرما اور سمر ہالیڈیز کے تعلق سے یہ چند باتیں رہیں جو بطور نصیحت آپ کے سامنے کی گئیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہر گھر میں جو لڑکے لڑکیاں، جو نوجوان بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اس وقت جو چھٹیاں چل رہی ہیں دنیا کے اعتبار سے، اے اللہ ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے وقت نکال کر کے ان پر فورس پریشر ڈالے بغیر ان کی دلی باتیں اور کسی میدان میں انہیں ہنر والا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام ماں باپ کو اپنی اولاد کی دینی تربیت کے بارے میں جو احساس ہمارے دلوں میں آنا چاہیے وہ احساس ہمارے دلوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتے ہوئے ہماری اولاد پر بھی اچھا اثر لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد، ہمارے خاندانوں کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔